plants, and this chapter is from your class 7 science NCERT textbook. So let us begin our today's topic. Before that, let me introduce you to me. This is Ishika Chandra and I am teaching in my video series with the science textbook, okay, of class 7. So now let us begin with the reproduction in plants. We are going to cover this whole chapter in two parts. The first chapter will contain some other topic and the second will contain some other topic. Before all that, we are going to begin that what actually this chapter consists of, what the topic are and what is the meaning of the chapter. So let us begin with this. So the meaning of the chapter means the reproduction. Reproduction, if we talk about the literary meaning, so it is divided into two parts. First is then production. Okay. So if I talk about the literary meaning according to the pronunciation, according to the spelling, so meaning what? It means again, or you can say again and again, means again, okay, again. Then production means to produce, means कोई भी नई चीज को अगर जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई नई चीज फॉर्मेशन हो रही है, तो वो है हमारा प्रोडक्शन, मीन्स टू प्रोड्यूस. Produce. So again and again production is called your reproduction, and here this production is going to be in the plants only that we are going to talk about in this chapter. So let us begin with the topic. Now the definition is clear, means the concept of the chapter is clear, that what actually the chapter is based on. Now in how many parts the chapter is divided and what topic does that parts contain. So now let us move on to that topic. So if I talk about chapter partition, so this chapter is totally based on the two types of reproduction in plants. First is asexual, second is sexual reproduction. So only the two topics means the two modes of reproduction in plants. So the basic thing, the two modes of reproduction in plant is asexual reproduction and sexual reproduction. So now beginning with the both the topic, means what topic does the asexual contain and what topic does the sexual contain. So let us begin. So let us talk about, in this part we are going to talk about the asexual reproduction. So let me introduce that the what topics does both contain. So talking about asexual reproduction. Asexual reproduction. So here the topics will be the types of this reproduction. Means firstly we will define the definition of asexual reproduction. Then we are going to talk about the kinds. Means asexual also contains some kinds, because in different organism it is different and different kinds of plant we have, right? So the first is going to be vegetative propagation. This is going to the first part. Second we have is budding. Then fragmentation. And the last topic we have of the asexual reproduction is your spore formation. So these are the few topics, means the four part of your asexual reproduction that we are going to cover in this part. And in the second part we are going to cover about the sexual reproduction, that how does this all is performed. Fine. And that topic we have the pollination, the fertilization, about whole process, how the fruit is formed and how the seedlings are formed, how they are dispersed to the different places, all that about. So here we go with our today's topic and are enough for today's topic. So let us talk about what this word means, right? So this word asexual reproduction
reproduction. When a new plant is produced, means when a new plant is produced without seed, then that is asexual. And when a plant is produced by using the seed, then that is sexual reproduction. फाइन, मीन्स जब हमारा जो प्लांट है वो हम लोग सीड को सो कर रहे हैं हमारे सॉइल में, तब जब हमारा प्लांट जो ग्रो हो रहा है तो वो होगा बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब हमारा प्लांट विदाउट सीड ग्रो हो रहा है तो विदाउट सीड इन 4 प्रोसेस से ग्रो कर सकता है. ठीक है, तो जब हमारा प्लांट बिना सीड के ग्रो हो रहा है तो वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे हम लोग बिना सीड की बात करेंगे. तो हमारा इसमें पहला टॉपिक आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टॉपिक पे शुरू करते हैं. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसमें हमारे प्लांट की जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं हमारे प्लांट में? प्लांट्स वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं रूट, देन स्टेम, लीव्स, बड. तो ये 4 पार्ट जो हैं हमारे प्लांट के, वो है हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स. इन पार्ट्स को यूज करते हुए हमारा जो एक नया प्लांट है वो प्रोड्यूस हो सकता है. न्यू प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो इन 4 पार्ट को यूज करते हुए हो सकता है. तो अभी ये जो 4 पार्ट है, हर प्लांट में ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी पार्ट निकाल के अगर सो करोगे तो वो ग्रो हो जाएगा. स्पेसिफिक प्लांट में स्पेसिफिक पार्ट हटाने से वेजिटेटिव प्रोपगेशन परफॉर्म की जाती है. फाइन, जैसे हमारे स्टेम हो गए पोटैटोज, ठीक है, हमारी लीव हो गई ब्रायोफाइलम की, हमारी रूट हो गई कैरेट रेडिश. ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है दैट वी आर गोइंग टू टेक इन दिस टॉपिक. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आई होप इट इज क्लियर. व्हेन द प्लांट्स vegetative part are used to produce their new ones is your vegetative propagation. Fine. So vegetative propagation is clear where the root, stem and leaf and bud are used. But one common thing is what? एक जो सबसे common thing वो है कि root, stem, leaf, ये तीनों चीजें जो आप सो कर रहे हो किसी भी प्लांट की निकाल के, उनमें बड प्रेजेंट होने चाहिए. They all should have contained bud. उनमें जब तक बड नहीं होगा तब तक वो नया प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. फाइन, तो जैसे रूट के एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स टेक स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो इज योर व्हाट? इट इज अ रूट. फाइन, स्वीट पोटैटो इज अ रूट, योर कैरेट इज अ रूट, योर रेडिश इज अ रूट. सो on that purpose, for the root propagation, what you can do, you can take them and then cut it them. Then you have to cut them and where the buds are present. You should remember that the bud should be present when you are performing the vegetative propagation. Bud is the important part. Bud is the very important part in the vegetative propagation. Right? So, root के example हो गए. Now we are going to read the stem. तो stem की अगर बात करूँ, so you can perform the process of cutting. तो cutting की process हम लोग किसमें करते हैं? Basically हम लोग रोज का example लेते हैं. तो रोज जो है, अगर हम लोग उसकी स्टेम को कट करते हैं जिसमें बड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसमें बड प्रेजेंट है, और उसे हम लोग कहीं पे प्लांट कर देते हैं, तो वो क्या होगा? एक नया प्लांट ग्रो करेगा. दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजिंग स्टेम. लीव्स की बात करें तो ब्रायोफाइलम होता है जिसके एजेस में क्या होती है? लीव्स ग्रो करती हैं. ठीक है, उसमें भी बड प्रेजेंट होती हैं, तभी नई लीव्स ग्रो करती हैं. दैट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लीव्स. बड की बात करें तो बड तो हमें इन तीनों में चाहिए, और अगर अकेला ये बड भी वर्क कर रहा है, सो दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन योर बड. फाइन. So I hope the root, stem and leaf, bud all are clear to you. And now let's talk about the bud in more detail. Fine. तो अगर बात की जाए bud की, so this is the important topic in the vegetative propagation. Fine. This is not this topic, but I am taking this topic from your vegetative propagation. So we are taking here bud. So there are different
डिफरेंट काइंड्स ऑफ बड. फाइन. सो एक काइंड की बड होती है हमारी फ्लावर बड, जिसके बारे में हम लोग ने हमारे क्लास 6 स्टैंडर्ड में पढ़ा था जब हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था. तो जो फ्लावर का स्ट्रक्चर था उसमें बड, सेपल, पेटल ये सब स्ट्रक्चर्स थे. फाइन. तो बड जो था उन्हीं में से एक था. जब हमारा फ्लावर बिल्कुल क्लोज था, जब उसके ऊपर सेपल्स थे, ठीक है ना, तब आपने उसमें देखा होगा दैट इज कॉल्ड एज बड. और उस बड को हम लोग कहते हैं फ्लावर बड. व्हाट दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर बड. जिसमें से फ्लावर ग्रो होगा वो फ्लावर बड होगी. एक होती है एक्साइल बड, ठीक है, जिसमें से लीव्स ग्रो होती हैं. जो एक पॉइंट होता है जहां से लीव्स ग्रो होती हैं वो होती है हमारी एक्साइल बड. ठीक है ना, ये एक सेकेंड काइंड ऑफ बड हो गई, एक्साइल बड. ठीक है. सो ये दो टाइप के बड है जिनके बारे में हमारे टॉपिक में बात की गई है. एज वेल एज जो फ्लावर्स हैं वही हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. फाइन. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीटली. फाइन. Now the root, stem and leaves were the vegetative part of the plant, जिनकी हेल्प से हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकती है. बड के दो पार्ट के बारे में बात करी, एक होती है फ्लावर बड, दूसरी होती है एक्साइल बड. ये समझ में आ गई. अभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का हमारे पास बेनिफिट क्या होता है, क्यों नहीं हम लोग सीड से ही डायरेक्ट कर लेते हैं. ये इसका रीजन ये है कि हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसमें हमारे पास बड ऑलरेडी डेवलप्ड है. जबकि जब हम लोग सीड से प्लांट को सो करेंगे तो पहले वो पूरा मैच्योर होगा, वो फूटेगा, फिर वो बस्ट होगा, फिर वो ग्रो करेगा. तो वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है. जबकि हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारा प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें बड तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसे बड ग्रो करने की जरूरत ही नहीं है. उसे बस उसे न्यूट्रिशन पहुंचाना है और वो ग्रो करने लगेगा. फाइन. तो यही था एक बेनिफिट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने का इन द प्लेस ऑफ your sexual reproduction. Fine. Now let's talk about our next topic. So yes, now we have the second asexual reproduction, that is budding. So budding is mostly observed in yeast, means it can be performed by any other organism also, means वो कोई और organism भी perform कर सकता है. But observe most of the time किसमें की जाती है, हमारी yeast के सेल में. ठीक है. तो अभी हम लोग yeast का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. तो yeast में क्या होगा, yeast को सबसे पहले आपको कोई भी सोर्स ऑफ yeast चाहिए. जो अगर आप yeast पाउडर ले सकते हो तो आपको पाउडर ले लो, उसे आप वाटर के सोल्यूशन में मिक्स करोगे. वाटर के सोल्यूशन में मिक्स करने के बाद आपको उसे एक ग्लास स्लाइड में लेना है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आपको एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होगा. फाइन. आई थिंक दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक आल्सो, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर आल्सो. तो बडिंग की प्रोसेस क्या है वो एक्चुअली आपको यहाँ पे पता चलेगी. तो एक यीस्ट सेल है, आपको उसमें एक यीस्ट का सेल दिखेगा. सेल के बाद क्या होगा, आप देखोगे उसमें एक बड डेवलप हो रहा है. ठीक है. उसमें एक छोटा सा पार्ट मीन्स कह सकते हो एक पार्ट डिटैच, मीन्स आप उसका शेप चेंज होते हुए देखोगे. ठीक है. उसका जैसे आपको शेप ऊपर के साइड या नीचे के साइड किसी भी साइड में आपको चेंज होता हुआ ऑब्जर्व करोगे तो दिखेगा. तो वो होगा उसका डेवलपिंग बड, मीन्स वो बड जो है होगा वो डेवलप हो रहा होगा. बड यहाँ पे क्यों लिया गया है, बडिंग की प्रोसेस क्यों बोला गया, क्योंकि बड की जो अपीयरेंस होती है वो भी ऐसी होती है, लीव्स ओवरलैप हो रही होती हैं और एक पतली सी स्टेम होती है. तो वो क्या होती है, बड का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो बडिंग की प्रोसेस में एक बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं. फाइन. तो यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो होगा हमारा डेवलपिंग बड. थोड़ी ही देर में आप ऑब्जर्व करोगे कि ये बहुत ही ज्यादा डिटैच हो रहा है. तो ये है आपका एक न्यू डेवलप्ड बड. अभी ये थोड़ी देर में डिअटैच हो जाएगा अपनी पेरेंट सेल से, और जब ये अपनी यीस्ट से पेरेंट यीस्ट से डिअटैच हो जाएगा तब ये मैच्योर होगा और ये भी एक नए सेल को, नए यीस्ट को प्रोड्यूस करेगा एज सेम एज दिस वन. ठीक है. वही पूरी प्रोसेस होगी. कभी कभी ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि ये ऐसी चेन फॉर्म हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं बड चेन. फाइन. तो यही हमारी पूरी प्रोसेस थी बडिंग की, जिसमें आपको चाहिए था एक यीस्ट का पाउडर या आप कोई भी यीस्ट का सोर्स लो,
उसको वाटर में ऐड करो, उसके बाद में जब आप उसको देखोगे स्लाइड के अंदर, तो ये जो पूरा बडिंग की प्रोसेस थी ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड थी, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे ये सेल है वो डेवलप करेगी एक बड लाइक मीन्स बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर वो आपको एक पूरा सर्कल दिखने लगेगा जो थोड़ी देर में डीअटैच होगा, आपको फील होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद में वो डीअटैच हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि वो एक के ऊपर एक ऐसे यीस्ट सेल दिखने लगते हैं और इसको हम लोग बड चेन कहते हैं। नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स, फाइन। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे हमारा फ्रेगमेंटेशन का न्यू टॉपिक। तो अब हम लोग आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, दिस इज योर फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन हम लोग किस में देखेंगे, एल्गी में, ठीक है। एल्गी बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, हम लोग बात करेंगे स्पायरोगायरा की, फाइन। तो हम लोग बात कर रहे हैं एल्गी की जिसका वैरायटी क्या है, स्पायरोगायरा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है, मीन्स वो स्टार्ट ही कैसे होती है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है, पहले जो भी ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन कर रहा है वो अपने आप को डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, फिर ग्रो करेगा। तो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है डिवाइड एंड ग्रो। बडिंग की प्रोसेस कौन सी थी, मल्टीप्लाइंग हो रही थी, मल्टीप्लाई एंड ग्रो। इसमें हो रहा है डिवाइड एंड ग्रो। जैसे हम लोग लेते हैं ये एक पार्ट है मान लो हमारे एल्गी का, मीन्स स्पायरोगायरा का, ठीक है। ये अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, फिर ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये दो पार्ट में अपने आप को ब्रेक कर लेगा। जब ये ब्रेक कर लेगा, दिस इज योर एल्गा, फाइन, मीन्स दिस इज योर एल्गी, दिस इज, ठीक है। तो ये इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लेगा, तभी इसकी प्रोसेस का नाम फ्रेगमेंटेशन है, क्योंकि फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए, फिर ये ग्रो हो जाएंगे। जब इन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये ग्रो हो जाएंगे। जब ये ग्रो हो जाएंगे तो फिर ये इतने कैपेबल हो जाएंगे कि ये अपने आप को डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड करेंगे फिर जो डिवाइड होगा फिर वो मल्टीप्लाई होगा। तो यही पूरी प्रोसेस है हमारी फ्रेगमेंटेशन की। हम लोग किस में ऑब्जर्व कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम लोग ये एल्गी में, ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं एल्गी में, और इसके कौन से फॉर्म में, स्पायरोगायरा, ठीक है, इसमें। अब हमारी एक लास्ट प्रोसेस जो बची है वो कौन सी है, हमारी लास्ट प्रोसेस बची है स्पोर्स फॉर्मेशन की, जिसमें हम लोग एग्जांपल किसका लेंगे, फंजाई का। सो लेट अस बिगिन विद दैट टॉपिक। So yeah, we are back with the spore formation topic. Here we are going to talk about the spore formation in fungus. So let us begin with, so have you ever wondered that how these spores are present in the atmosphere? Means जो हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग ने हमारे चैप्टर्स में पढ़ा था, आई थिंक इसी क्लास में पढ़ा था, कि हमारे स्पोर्स जो है फंगस के स्पोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं। जहाँ पे भी उसे वेट और ह्यूमिड या वेट और हॉट वेदर कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहाँ पे वो लैंड करेंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। यही एक फैक्ट जो हम लोगों ने हमारी साइंस इसी क्लास के टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, इन दी फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने सैप्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। उसमें ये स्पोर्स आ कहाँ से रहे हैं, तो अब इसी की बात को समझते हैं। तो स्पोर्स फॉर्मेशन में ये जो स्पोर्स है ये जनरेट होंगे, ये बनेंगे, और जर्मिनेट कब होंगे, जब इन्हें वो फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वो लैंड करेंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। ये जो रूट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हाइफा, ठीक है। ये जो कवरिंग है ये कवरिंग स्पोरेंजियम है। जब ये कवरिंग बर्स्ट होगी या जब ये फट जाएगी तब इसके अंदर से ये जो निकलेंगे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यही है हमारे स्पोर्स, ठीक है।
ये जो स्पोर्स है, ईच स्पोर हैज दी हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। ये जो कवरिंग है इनका क्या होगा, ये कवरिंग बाय द विंड हो गया या फिर एक्शन ऑफ वाटर हो गया, इनकी वजह से अलग अलग जगह पे डिस्पर्स हो जाएंगी। जब ये देखो मतलब ये लाइट वेट है, तो ये लाइट वेट है तो इसलिए ये हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगी, ठीक है। बाय द विंड ये ब्लो आउट हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है, इसलिए ये फ्लोट करती रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। हर एक स्पोर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जो इसे हर एक टाइप के वेदर कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्प करेगी। अब जब इसे फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होगी, हॉट, ह्यूमिड, ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी जिस भी एरिया में, वहाँ पे ये लैंड करेगी और जर्मिनेट हो जाएगी। तो यही थी पूरी प्रोसेस जहाँ पे आप जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फंगस ग्रो हो रही थी, तो वो इसी की वजह से हो रही थी। जो स्पोर्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसी प्रोसेस की वजह से, ठीक है। स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा जिसके अंदर जो स्पोर्स हैं वो बाय द एक्शन ऑफ विंड, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड है, ब्लोन अवे हो जाएंगे। जब ब्लो हो जाएंगे तो फिर एटमॉस्फेयर में मूव आउट करेंगे। उसके बाद में ये जिस पे भी लैंड करेंगे जहाँ पे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे और वहाँ पे फंगस लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी स्पोर्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस, जहाँ पे स्पोर्स जो हैं, ये जो स्पोर है ये फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना। स्पोरेंजियम फटेगा, उसके अंदर से स्पोर निकलेंगे, स्पोर की फॉर्मेशन हो गई। अब इसी से स्पोर्स से हमारा नया क्या फंगस ग्रो हो रही है, ठीक है ना। स्पोर से फंगस ग्रो हो रही है, तो फिर ये एक पार्ट है जिससे फंगस ग्रो हो रही है विदाउट दी सीड। यहाँ पे हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट स्पोर फॉर्मेशन। So I hope spore formation is also clear to you, and in the NCERT textbook the example of fern and mosses are also given. You can also go through that, okay, but the most important example was your fungus. Fine. Now the whole topic of asexual reproduction is completed, and now in our next video, in our part second video of reproduction in plants, we are going to discuss about the sexual reproduction. We are going to talk about in that video pollination, fertilization, the formation of fruit as well as the disposal of seeds. Fine. And the causes of disposal of seed, why they are used to dispose from one place to another. So this was the all topic that we have to cover in our part second video. And now our part 1 video about the asexual reproduction is completed. We have studied about the fragmentation, the budding, the spore formation, vegetative propagation about the bud, and we have talked about the reproductive part of plant is your flower. Fine. So these all topics are completed. Now in our next video we will talk about the sexual reproduction, and till then you have to do just one thing, just share, like and subscribe to my channel if you like the way I teach. So till then, tada, bye bye.